Yes. A very good evening to all. Myself, Dr. Manjiri from Nagpur. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series, learning series Guruji ke Saath Guruvang 2.0 that was started on 10th April 2025 under the mentorship of our Guruji Dr. Liaquat Memole sir. I would like to share a few words about PHF, that is Professional Homeopathic Forum, which was founded by Dr. Liaquat Memole sir with vision to educate homeopaths and transform GPs to homeopathy again. He is successful in transforming more than 2,000 2,000 GPs towards homeopathy. We organize various activities regularly so that we can reach maximum homeopaths who are not able to practice due to lack of proper guidance. PHF is the pioneer group for free learning of homeopathy. First started on WhatsApp and now on Telegram. Now about 3,000 doctors are learning daily on Telegram group. Recently, we completed free webinar series of 100 lectures, which is available on our YouTube channel, that is Ignited Minds by PH. This is our session number 155. Now we are sharing new series of lectures, that is What Women Want, to explore women's heart, emotions, and needs to be able to heal her. About today's lecturer, it gives me immense pleasure to welcome our esteemed speaker, today's webinar, Dr. Neelam Avtar Singh Madam. Dr. Neelam Madam completed her DHMS in 1985 and has practicing homeopathy for more than 37 years. In 1993, she came into contact with Dr. Sehgal sir and since then has been deeply involved in mind method, making significant contribution to this field. She has been invited as speaker on many academic platforms and is widely respected for her vast clinical experience and dedication towards teaching. Along with her own practice, she also serves society through two charitable homeopathic OPDs. Madam is co-author of a book Homeopathy and Mind with Dr. A.S. Mansar and Dr. Bhupinder Singh sir. She is also the author of Marble Sapphire, which presents 21 clinical cases from her rich clinical experience. She is founder member of ASRH and is known for her discipline, punctuality, simplicity, and passion for homeopathy. Her to our profession is truly inspiring. Friends, today we have wonderful opportunity to learn from one of the most experienced teacher in this field of homeopathy. Without taking much of your time, I warmly welcome our respected speaker, Dr. Neelam Avtar Singh Madam. Madam, we are honored to have you with us. Welcome once again. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you, Dr. Manjari. Yeah. So, two corrections करनी है. Pehla, it's more than 40 years I'm practicing homeopathy. Secondly, I've written 3 books. There is one more book that is Guide to Rubrics. This is my recent book and 1.5 साल पहले इसको मैंने बनाया था जो कि हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है. सब गुरु जी के साथ गुरुवार में डॉक्टर लियाकत निमोले जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर डॉक्टर्स बनाया हुआ है और हर थर्सडे को उनका कोई ना कोई डॉक्टर अपना व्यूज शेयर करते हैं, अपने केसेस प्रेजेंट करते हैं. सो डॉक्टर लियाकत निमोले जी, सो मेनी थैंक्स एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना बड़ा ये एक सेकंड सीरीज आपकी चल रही है 100 वीक्स में कंप्लीट होने के बाद ये आज 155th आपका
लेक्चर है। आज हम, जैसे कि डॉक्टर मंजरी ने बताया कि आजकल हम वेमेन की हेल्थ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उनको हील कर रहे हैं। तो आज मैंने 3-4 केसेस निकाले हैं और वो सारे वेमेन के हैं। पहला केस, ये एक पेशेंट है 25 इयर्स के। आपने ये सब आप नोट करते जाइए, ताकि बीच बीच में जब मैंने सिम्टम्स पूछने हैं तो फिर आपको उसमें मदद मिलेगी। आप लिखते जाइए इन चीजों। ये एक पेशेंट है, फीमेल पेशेंट 25 इयर्स के, जिनको पीसीओडी है और दूसरी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है। पीसीओडी एंड पीसीओएस, ये दो मेन जो वेमेन की प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी तो पीसीओएस का नाम बदल के इन्होंने पीएमओएस रख दिया है, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो बहुत सारा इन प्रॉब्लम्स के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। हार्मोनल रीजंस है, स्ट्रेस है, बहुत बहुत सारे रीजंस हैं। तो जब मैंने इन पेशेंट से पूछा कि प्रॉब्लम बताइए, तो ये बोले कि 7 साल से पीसीओडी की प्रॉब्लम है और पीरियड्स आते ही नहीं है। अभी भी शी सेड के 2 साल हो गए कि पीरियड्स नहीं आए, 2 साल से। और दूसरी प्रॉब्लम डाइजेशन की। मैंने अक्सर देखा है कि लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत लेते हैं और बहुत सारे लोग खराब भी होते हैं, क्योंकि वो क्रूड फॉर्म की मेडिसिन होती है। एंड जब मैंने पूछा कि कोई आपने अल्ट्रासाउंड करवाया या कुछ ऐसी कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन, तो उन्होंने बोला कि यस, लास्ट ईयर हमने एक अल्ट्रासाउंड करवाया था जिसमें बहुत बड़ा सिस्ट आया है राइट ओवरी में। और उन्होंने फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन ली, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। 5-6 महीनों के बाद जो दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया, तो जो सिस्ट था इतने बड़े साइज का, 10.1 इंटू 8.5 इंटू 6.2 सेंटीमीटर्स। आप ये देखो, ये 10 सेंटीमीटर्स है, यहां से इतना बड़ा सिस्ट ऑन राइट ओवरी। और पीरियड्स बिल्कुल नहीं आ रहे, 2 साल हो गए, 2 साल से पीरियड्स नहीं आए। आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई, बहुत खाई, डाइजेशन के लिए भी खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और बल्कि ये सिस्ट जो है वो बढ़ गया। एंड मैं तो कहते कि मुझे डाइजेशन की इतनी प्रॉब्लम है कि मैं तो मिर्च मसाले भी नहीं खाती। प्रोलैक्टिन इनका 7.05 है, थायराइड ठीक है, थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है, टीएसएच इनका 1.4 है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जब भी बात करते हैं तो माइंड के साथ रिलेटेड हर चीज जो पेशेंट सोचता है, यहाँ पे सेंटर है, हम वहां से चीजों को उठाते हैं। तो मैंने पूछा जी नेचर कैसी है, गुस्सा गुस्सा कितना आता है? तो वो कहते हैं या तो आता नहीं है, या आ गया तो बहुत भी आता है। तो कभी कभी बोल देती हूँ, कभी कभी नहीं बोलती, 2-4 मिनट के लिए आता है और फिर मैं भूल जाती। ज्यादा नहीं मैं अपने दिमाग पे इस बात का बोझ करती। थर्मल्स पूछे, कोई खास नहीं है। चिंता फिकर पूछा, कोई खास नहीं है। रोना हाँ कभी कभी आ जाता है, ज्यादा नहीं। मैंने कहा पढ़ाई, कहते बीए की है और एवरेज मार्क्स आया करते थे, हैंडराइटिंग अच्छी है। तो पहले मेरा वेट बहुत ज्यादा होता था, अभी तो वो मेडिसिन लिए तो उससे बहुत कम हो गया। थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने कहा और बताइए अपने बारे में। तो इनके मदर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब खलारा बहुत डाल के रखती है, अलमीरा देखो वो भी गंदी, कपड़े ठूसे हुए हैं उसमें, बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, कमरा इतना गंदा रहता है, अलमीरा में कपड़े ऐसे बिखरे रहते हैं, और 15-20 दिन के बाद जाके कहीं ये साफ सफाई करती है।
तो मैंने कहा कि डिमांड्स वगैरह कितनी होती हैं, कहना कितना मानती है। तो कहना खोना तो कहते चलो ठीक है, पर डिमांड्स डिजायर्स बहुत ही ज्यादा, इसको तो हर चीज चाहिए। और जब शॉपिंग करनी होती है, अपने पैसे नहीं खर्चती, मेरे पैसे खर्चवाती है। तो इसके मदर ने ऐसा बोला, डिमांड्स बहुत ज्यादा, कंजूस है, अपने पैसे संभाल के रखती है और सेविंग्स करती है, किसी को नहीं देती, लेकिन लापरवाह बहुत है। फिर इसके मम्मी बोले, बड़ी सेल्फिश है डॉक्टर साहब। सेल्फिश? सेल्फिश कैसे? कहते इसने ना जब कोई शॉपिंग करनी होती है, जब कहीं जाना होता है, वैसे तो मेरे साथ कोई काम धाम करवाती है नहीं, जब कहीं जाना होता है तो ये भाग भाग के सारे काम करेगी कि लाओ मम्मी ये कर दूं, लाओ मम्मी वो कर दूं, क्योंकि बाजार जाना है, शॉपिंग करनी है। तो इस तरह के ये बड़े सेल्फिश है, ये बड़े मतलबी है। ये उन्होंने यूज किया, बड़े मतलबी है। जब भी कहीं जाना होता है तो फटाफट सारा काम ये फिनिश करवा देती है, बहुत चुस्त है, बड़ी कैलकुलेटिव है। सो दिस इज द केस। और जो भी डॉक्टर्स चाहते हैं अपना फोन अनम्यूट करके आप मुझे रूब्रिक्स इसके बनाइए कि कौन कौन सी रूब्रिक हम इस केस में लगा सकते हैं। मैनिपुलेटिव लगी मैडम? ठीक है, आप बोलिए। ठीक है। हाँ, मैनिपुलेट करती है मम्मी को, जब काम रहता है तब मस्का लगाती है, नहीं हाँ तो नहीं करती कुछ भी। हाँ। और एवराइज है। हम्म। और मैम फ्रिवलस भी है बहुत ज्यादा। प्रिवलेज तो है, क्योंकि बिल्कुल अपनी अलमीरा साफ नहीं करनी। और मैम सेल्फिश भी है। सेल्फिश भी है, क्योंकि जब जरूरत है फिर मम्मी के आगे पीछे घूमना कि मम्मी मैं करवाती हूँ, मम्मी मैं करवाती हूँ, अदरवाइज मम्मी के साथ कोई हेल्प नहीं करवाती। और खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है कि क्योंकि अभी इसका वेट पहले बहुत ज्यादा था, अभी रिड्यूस किया है, तो इस वजह से ये थोड़ा बड़ा सोच समझ के खाती है। थर्मल्स में इसको गर्मी बहुत लगती है। कोई पल्स और जैसी लग रही है मैम। है? पल्सटिला जैसी लग रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा। ओके, चलो अब इसका एनालिसिस करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले वो रूब्रिक लीजिए जो पेशेंट को प्रॉब्लम है। जैसे इसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में आएगा ट्यूमर्स, जनरल ओवरी सिस्ट, उसमें आई थिंक 44 मेडिसिन है या। उसके बाद दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है एमीनोरिया, के पीरियड्स नहीं आ रहे, उसमें बहुत सारी हम जनरल लेंगे, 208 मेडिसिन है, हम जनरल सब कुछ लेंगे, चाहे हम इन चीजों को कंसिडर करें या ना करें, चाहे हम अकेले माइंड को प्रेफरेंस दें, लेकिन हमने ये लिखना जरूर है। फिर उसकी मम्मा ने बोला कि बड़ी सेल्फिश है, तो हम सीधे सीधे सेल्फिशनेस ले लेंगे। फिर ये नहीं किसी ने बताया कि उसकी डिजायर्स बहुत होती हैं, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए खरीदने के लिए, लेकिन पैसे दूसरे के खर्चवाती है, मम्मी के खर्चवाती है। डिजायर्स न्यूमरस वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीजों की इच्छा होती है, और खुद एवराइज है, कंजूस है, पैसे जोड़ जोड़ के रखना। एवरेज वाला हमेशा पैसे के ढेर लगा के रखता है, जोड़ जोड़ के रखता है, खर्चा नहीं करता। और फ्रिवलस, क्योंकि कुछ नहीं करना। कॉशियस, क्योंकि खाना पीना बहुत ध्यान से खाना, गर्मी ज्यादा लगती है, हीटेड बिकमिंग एग्रीवेट। और जो
लास्ट में आपने मैनिपुलेटिव बोला, तो हर रेपर्टरी में वो रूब्रिक नहीं है, कईयों में डिसीटफुल लिखा हुआ है कि ये जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ये डिसीटफुल होते हैं। जब मैंने ये सारे रूब्रिक्स डाले, सबसे पहली मेडिसिन आती है आर्सेनिक। हम हर मेडिसिन को डीडी करेंगे किसी दूसरे के साथ, ताकि हम एक प्रॉपर उसमें पहुंच जाए कि एक्चुअल में कौन सी मेडिसिन पेशेंट को देंगे। सो पहली मेडिसिन आती है आर्सेनिक। आर्सेनिक वाला कभी भी फ्रिवलस नहीं होता, वो कभी भी बखेरा डाल के नहीं रखता। इन जनरल वो बहुत फास्टिडियस होता है, और तब तक वो चैन नहीं करता जब तक के चीजों को अच्छी तरह से सजा के टका के रख ना ले। तो मेरे हिसाब से ये तो आर्सेनिक तो गई, वो तो नहीं है। दूसरी मेडिसिन आती है लैक्टिसिस। मैंने सोचा जैसी काफी शैतान काइंड ऑफ है, काफी मतलबी है, कैलकुलेटिव माइंड है, तो मैंने सोचा कि लैक्टिसिस हो सकती है। लेकिन लैक्टिसिस में कोई भी डिजायर्स नहीं है इस तरह की न्यूमरस वेरियस थिंग्स की, कोई ज्यादा, अदरवाइज सारे रूब्रिक्स कवर किए, सिर्फ एक डिजायर्स वाला नहीं था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम इसको लैक्टिसिस देते हैं। लैक्टिसिस 30 दी, और 1 महीने के बाद उन्होंने बोला कि हमारे तो अभी पीरियड्स आए भी नहीं। वैसे भी अब 2 साल हो गए, पीरियड्स नहीं आए, तो कोई जरूरी नहीं होता कि हम जैसी पहली मेडिसिन देंगे तो पीरियड्स आ जाएंगे। पर मुझे लग रहा था कि लैक्टिसिस जैसी भी नहीं है, जितना वो शैतान होता है, जितना वो मिस्चीवियस होता है, मैलिशियस होता है, ऐसी नहीं है। तो थर्ड मेडिसिन आती है पल्साटिला। पल्साटिला अकेले ओवेरियन सिस्ट में नहीं है, बाकी सारे के सारे रूब्रिक्स में है। उसके थर्मल्स भी मैच करते हैं, सेल्फिश भी होता है, डिजायर्स न्यूमरस वेरियस थिंग्स है, एवराइस है, कॉशियस है। और किस तरह का होता है पल्साटिला, कितना ग्रीडी होता है, एवराइस कितना किस तरह का होता है, एवराइस wants all for himself, इतना ज्यादा ये सेल्फिश होता है। हालांकि हम जब पल्साटिला को पढ़ते हैं, हम इस हिसाब से पढ़ते हैं कि ये बहुत माइल्ड है, बहुत यील्डिंग है, बहुत अच्छा बंदा है, इसमें तो ये तो दूसरों को चीजें देता रहता है, इस तरह का। लेकिन जितनी ज्यादा ग्रीड पल्साटिला में हमने प्रैक्टिकली देखी है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी में भी है। तो इसका एक रूब्रिक है, एवरेज wants all for himself, कि मुझे सारा चाहिए। जैसे 2 बच्चे हैं घर में, मम्मी ने कोई अच्छी सी चीज बनाई, कोई खीर बनाई, तो जो पल्साटिला वाला बच्चा होगा वो कहता नहीं, मैंने ही खानी है सारी, मैंने ही खानी है, मैंने भैया को नहीं देनी, मैंने ही खानी है। तो ये इस तरह का होता है। अदरवाइज चाहे माइल्ड है, यील्डिंग है, लेकिन चाहिए उसको हर चीज। डिजायर्स में भी ही वॉन्ट्स न्यूमरस वेरियस थिंग्स। कोई भी एक ऐसा रूब्रिक नहीं था जिसमें पल्साटिला नहीं थी, एक्सेप्ट फॉर ट्यूमर्स और सिस्ट, ये छोड़ के। फ्रिवलस है, पल्साटिला के दोनों रूप है, वो फ्रिवलस में भी है और वो फास्टिडियस में भी है। कई जगह पे इसको हम फास्टिडियस देखते हैं। अगर आप इन दोनों रूब्रिक्स को इकट्ठा करते हैं, फास्टिडियस एंड फ्रिवलस को, उसमें सिर्फ 2 मेडिसिन रह जाती हैं, एक पल्साटिला, एक कोनिया। तो यहाँ पे फ्रिवलस आ गया, heated becoming aggravate, deceitful, cautious, avarice, selfish। तो मैंने सोचा कि मुझे वैसे भी लैक्टिसिस ज्यादा लग नहीं रही थी, मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि उसमें डिजायर्स नहीं होती, तो मैंने पल्साटिला दी। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫਾਸੀ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ पल्साटिला ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਾਊਂਗਾ 1 ml की 1 डोज दी। तो उन्होंने 1 महीना दवाई खाई, दवाई छोड़ दी। तो अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दवाई शुरू करते हैं, 1 महीना ली, 2 महीने ली, दवाई छोड़ देते हैं। ये तो मैं वैसे भी बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि अगर दवाई शुरू की है तो 4-6 महीने दवाई खानी है, क्योंकि 7 सालों से पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो 2 साल से पीरियड्स नहीं है।
तो उन्होंने दवाई छोड़ दी। तो हमें तो क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, छोड़ दी तो छोड़ दी। 3 महीने के बाद उनका फोन आता है कि डॉक्टर साहब, बेटी के 2 साल के बाद, 2.25 साल हो गए, उसके बाद अब पीरियड्स आ गए, तो प्लीज आप दवाई दोबारा से भेज दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर से मैंने पल्सटिला 1M, क्योंकि 4 महीने का गैप पड़ गया था, 3 महीने का, मैंने फिर से भेजी। और थोड़ा उन्होंने हेल्प उन्होंने जब दूसरी बार फिर मुझे अगली बार कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि 35 डेज के बाद बेटी के फिर से पीरियड्स आए। मैं तो हैरान होती हूँ कि हमारी दवाइयां कितनी कितनी ज्यादा इम्प्रेसिव है, कि मैंने पल्साटिला इसलिए नहीं दी कि वो एमिनोरिया में होती है, मैंने इसलिए दी क्योंकि उसकी सारी साइकी जो थी वो पल्साटिला जैसी थी। अगर मैं कोई मेडिसिन यूज करती हूँ तो मेरे पास उसका लॉजिक होता है कि मैंने ये दवाई उसको क्यों दी। हम जब 10-10 दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जब डॉक्टर्स ये कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ना तो उनको ये समझ लगती है कि किस दवाई ने पेशेंट को ठीक किया, ना तो उनको ये समझ लगती है भी एक एक कॉम्बिनेशन में 10-10 20-20 दवाइयां होती हैं। कोई रेकबैक का है, कोई SBL का है, हर फार्मेसी के। हमने कभी भी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया। हम सिर्फ एक मेडिसिन यूज करते हैं, मिनिमम डोज यूज करते हैं, ताकि पेशेंट के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट या बुरा इफेक्ट ना हो। तो यहाँ पे अगर पल्साटिला से, अगर लैकेसिस से ठीक होती तो वो पहले भी हो सकती थी, लेकिन लैकेसिस वाली पर्सनैलिटी लगती नहीं थी। तो पल्साटिला ने क्योंकि सारे रूब्रिक्स कवर किए, हालांकि हम किसी भी मेडिसिन के नंबर्स काउंट नहीं करते कि ये फर्स्ट ग्रेड में है, इसको 5 नंबर दे दो, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, नहीं, हम ऐसे नंबर नहीं देते। लेकिन पल्साटिला ने चाहे तीसरे नंबर पर खड़ी थी, लेकिन उसने सारे में रेड रेड बोर्ड उनमें थी कि ये रूब्रिक भी बहुत स्ट्रांग है, ये रूब्रिक भी बहुत स्ट्रांग है। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल केस जिसमें 2 साल के बाद पेशेंट के पीरियड्स आए, और बहुत अच्छे 5-6 दिन पहली बार रहे और 5-6 दिन दूसरी बार रहे। अभी भी कॉन्टिन्यूस है। मैंने उनको बोला कि जो इतना बड़ा सिस्ट था, अब उसका आप अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाएं। आपको एक और बात पता है गुड इवनिंग मैम। हेलो जी। मैंने अभी आपसे बात ही हो रही थी, आप बता रहे थे, तब तक मैंने एक रिपोर्टाइजेशन कर लिया जो सबसे लेटेस्ट रडार सॉफ्टवेयर है उससे किया, और फॉर्चुनेटली पल्सेटला फर्स्ट नंबर पे आ रही है। देखिए, आपको मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है जी चैट बॉक्स में, और ठीक देखिएगा है। इसमें ये जो पल्सेटला है, इसमें मैंने रूब्रिक्स जो लिया था, ये है फीमेल ट्यूमर ओवरी सिस्ट मेंसेस एब्सेंट सेल्फिश एवेरिस कॉशियस फ्रिवलस डिसीटफुल एंड ग्रीड क्यूपिडिटी। हाँ, ग्रीड क्यूपिडिटी। This is the first medicine. The medicine is pulsatilin. हाँ, Fortunately. मेरी फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं आई? क्योंकि ट्यूमर्स ओवेरियन सिस्ट में ये नहीं पड़ी, हाँ, ये इसलिए। जो पुरानी रिपर्टरी है हाँ उसमें नहीं है। हाँ, इसमें ये बाद में डॉक्टर फारूक मास्टर ने इसको ऐड किया है रिपर्टरी जी में। जी जी जी। जी। नहीं, बहुत अच्छी चीज है आपने जो बताई, जो आज मेरा भी नॉलेज एनहांस हुआ कि पल्सेटला बहुत ग्रीडी होता है। ये बहुत मेरे ग्रीडी माइंडसेट होते में है। हैं, और आपको पता है वो इतना रोता क्यों है? पल्साटिला की छोटी सी बात करते हैं। जी। तो पल्साटिला हमेशा उसको लगता है कि मैं अकेला हूं, मुझे मेरे घर वाले पूछते नहीं है, और बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं देते। जब तक मतलब एक लेडी बोल रही है, जब तक मेरे हस्बैंड थे तब तक सब कुछ ठीक था, अब वो चले गए तो ये लोग तो अपने कमरे में जाके बैठ जाते हैं, मैं अपने कमरे में बैठी देखती रहती हूँ, और इतना मुझे निग्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल भी मुझे पूछते नहीं है। लेकिन मैं इनका बहुत ध्यान रखती हूँ। वो ध्यान क्यों रखती है? क्योंकि उसको लगता है वो तो पहले ही नहीं पूछते। अगर मैं भी उनके जैसी हो गई, अगर मैं भी उनके साथ स्ट्रिक्ट हो गई, थोड़ा रिजिड हो गई, फिर तो जो मुझे बिल्कुल नहीं पूछेंगे। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो दोनों
डिल्यूजन निग्लेक्टेड एंड फियर निग्लेक्टेड में पड़ी है, कि उसको लगता है कि वो निग्लेक्ट हो रही है, और अगर मैंने इनसे ढंग से बात नहीं की तो ये लोग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। इस तरह की ये सेल्फिश होती है, इस तरह की और ये बल्कि एक और वर्ड है, इसको फियर ऑफ अबांडेंड बहुत होता है, फियर ऑफ जिसको मीन 4 सेकंड अबंडन। अबांडेंड। जी, जी जी। तो थैंक यू। फोरसेकन है, स्ट्रेन्ड है, बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं। जी तो जो पल्सरेला का किंग पिन बनता है वो ये बनता है: अलोन, वीपिंग, फोरसेकन, एस्ट्रेंज, नेग्लेक्टेड। ये 4-5 चीजें अगर आपको एक पेशेंट में मिलती है तो समझो कि वो 100% पल्सरेला है। जी। मैम उसके मैम जी इसमें क्वेश्चन है कि जैसे सिम्टम्स कुछ भी हो, इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू पीसीओडी, लाइक पेशेंट के स्कैंटी मेंसेस नहीं है मगर मेंटल पिक्चर यही मेकअप मिल रहा है, फिजिकल में लेकिन साइकिल्स आर नॉट इरेगुलर, साइकिल्स आर नॉट हाँ स्कैंटी, साइकिल्स आर फॉर 5-6 हाँ डेज, तो हाँ भी हम पल्सिटिला सोचेंगे? हाँ बिल्कुल। हम क्यों लेंगे? क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो सेंटर है ये हर चीज को कंट्रोल करता है। ये जो यहाँ पे जो बिल्कुल सेंटर है जो कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, अगर वो हमने कंट्रोल में कर लिया थ्रू दीज माइंड सिम्टम्स, चाहे आपका वो सिस्ट कवर ना करे। मैंने बहुत बार देखा है कि मेन बीमारी नहीं कवर हुई ना सही, लेकिन सारी उसकी साइकी उससे मैच करती है, तो वो डेफिनेटली हम उसी मेडिसिन को देंगे और वही मेडिसिन इफेक्ट करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है इसमें लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में वो डिजायर्स नहीं है, वो फ्रिवलस नहीं है। आगे फिर मर्कसॉल है, उसमें भी डिजायर्स नहीं है, उसमें कॉशियस नहीं है। आगे आगे फिर 2-2 3-3 रूब्रिक्स खत्म हो जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट केस जिसमें कितनी देर के बाद पेशेंट को उसके पीरियड्स आए, और मुझे लगता है कि अब अगर वो अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। और इतना बड़ा आप देखो, 10 सेंटीमीटर का, यहां तक, यहां से यहां तक इतना बड़ा उसका जो सिस्ट है। और जो मैं कहने लगी थी कि आपको पता है कि आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? पहले ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं हुआ करती थी, आजकल क्यों होती हैं? क्योंकि पहले औरतें फिजिकल काम बहुत करती थी। पहले औरतें नीचे बैठ के खाना बनाती थी, झाड़ू पोछे खुद लगाती थी, सारे काम, कपड़े धोने, साबुन रगड़ना। आजकल तो मशीनें आ गई हैं हर चीज के लिए, और खड़े होके काम करते हैं। तो बैठ के काम करने से क्या फर्क पड़ता है? जब हम बैठते हैं तो हमारा लोअर एब्डोमेन प्रेस होता है। जब वो प्रेस होता है तो बहुत सारे जो सिस्ट होते हैं, सिस्ट क्या होता है? पानी का एक छाला सा होता है, एक ब्लिस्टर सा होता है। जैसे ही ज्यादा टाइम तक पोछे लगाए, नीचे बैठ के खाना बनाया, तो वो कितने तो ऐसे अपने आप ही टूट फूट जाते हैं, तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और आजकल क्या होता है, हमारी उम्र में तो चलो हम लोग तो बहुत काम करते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे क्या है, वो तो ना तो उन्होंने बैठ के कभी झाड़ू पोछा लगाना है, ना उन्होंने बैठ के कभी खाना बनाना है। खाना बनाना ही नहीं है, किचन में जाना ही नहीं है। मैं तो बहुत सारे पेरेंट्स को, जब वो अपनी बच्ची को लेके आते हैं तो मैं पूछती हूँ कि क्या आपने बच्ची को खाना बनाना सिखाया? 20 साल की लड़की हो गई तो नहीं जी डॉक्टर साहब, अभी तो पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई क्या, 24 घंटे पढ़ाई ही करती रहती है? यही कारण है कि आजकल डिवोर्स ज्यादा होता है, यही कारण है कि लोग उसकी बनती ही नहीं है। और दूसरी बात, गर्ल्स में मेल्स हार्मोन ज्यादा हो गए। क्यों हो गए? हर चीज के पीछे कुदरत ने कोई ना कोई रीजन बताया है। क्यों हो गए? क्योंकि उनकी सोच बदल गई। पहले औरतें घर में रहती थी, चूल्हा चौका करती थी, सफाई करती थी, परिवार को संभालती थी, बच्चों को पैदा करती थी, उनको बड़े ही करती थी। जो मेल्स होते थे वो घर से बाहर जाते थे,
कमा के लाते थे और औरतें घर में रहती थी। आजकल क्या हो गया, हमारी गर्ल्स की सोच बदल गई, वो मेल्स की तरह सोचने लगती है। वो कहती है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम कमाएंगे क्यों नहीं। ठीक है, बात में ठीक है, कोई इसमें गलत नहीं है, लेकिन उनकी सोच में जो बिजनेस आ गया, मेल मेंटेलिटी का आया, उनका क्यों टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ के आता है, उनके क्यों अनवांटेड हेयर आ गए हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका ब्रेन, उनका दिमाग, उनका मन चेंज हो गया कि अब हमने बिजनेस करना है, हमने पैसे कमाने हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सो इस तरह से ये जो कुदरती चेंज आती जा रही है, उससे हमारी बेटियां, हमारी गर्ल्स बीमार होती जा रही है। आजकल कोई शादी नहीं करता, बच्चों को देखो 30-30, 35-35 साल तक शादी नहीं करते। क्यों नहीं की? कि हमारा अभी करियर सेट नहीं हुआ। अरे करियर सेट नहीं हुआ, अपनी फैमिली लाइफ तो सेट कर लो। नौकरी तो आपको अगर 25 साल में नहीं मिली, 30 में मिल जाएगी, 35 में मिल जाएगी, लेकिन जो आप आज शादी नहीं करोगे 35 ईयर्स तक, उसके बाद तो फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, फिर आईवीएफ में जाना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हमारे सिस्टम में हम खुद पैदा करते जा। सो अब हम सेकंड केस की बात करते हैं। ये भी एक लड़की है 27 ईयर्स की, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, शादी को 3 साल हो गए, जॉब बहुत हैक्टिक है, गुड़गांव में उधर रहते हैं जहां पे बहुत ये बड़े बड़े जॉब्स हैं। तो शादी हुई है, 3 साल हो गए, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। और जॉब कैसी है कि सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक, 9 बजे पहुंचने के लिए उनको घर से 8 बजे चलना पड़ता है, 6 बजे खत्म होने के बाद वो 7 बजे घर पहुंचते हैं। ज्वाइंट फैमिली है, और ज्वाइंट फैमिली में उनके ब्रदर इन लॉ भी रहते हैं, उन सिस्टर इन लॉ भी रहती है, उनके 2 बच्चे भी रहते हैं। जब उन्होंने टेस्ट करवाए तो पता चला कि उनको हाइपरथायराइड है। उनका जो T3 T4 तो फिर भी ठीक थे, लेकिन TSH 0.010 था, बहुत ज्यादा कम था। तो मैंने बोला जी क्या सोचते हो कि अपने बारे में, बच्चे के बारे में क्या दिमाग में आता है? कहते डॉक्टर साहब इतनी हैक्टिक लाइफ है, बहुत ही ज्यादा। क्या सुबह 8 बजे चले जाते हैं, रात को 7 बजे आती हूँ, आके इतनी थक हार जाती हूँ। ज्वाइंट फैमिली है, रात का खाना उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है कि तूने बनाना। 7 बजे आती हूँ, मैं 5 मिनट भी रेस्ट नहीं कर पाती, मेरा बिल्कुल कुछ करने को मन नहीं होता, क्योंकि वहां भी कौन सा हम कोई बैठ के थोड़ी आए हैं, वहां पे भी तो प्राइवेट जॉब्स वाले कितना खून चूसते हैं। तो बिल्कुल मेरा कोई काम करने को मन नहीं करता, पर करूं क्या, करना पड़ता है। और कोई फाइनेंसिस भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई बहुत वो है, घर के हालात भी बस ठीक ठीक है, पर मैं बहुत हेल्पलेस हो जाती हूँ, मेरे से बिल्कुल काम नहीं होता। पर करूं क्या, जॉइंट फैमिली है, करना पड़ता है। हालांकि मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब जब लेडी ने किचन में काम करना है तो वो कहाँ काम करेंगे। तो सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो मैंने कहा फिर, कहते नहीं कुछ नहीं, घर भी उनको साफ सुथरा चाहिए, खाना भी उनको रात को 2-2 दाल सब्जी बना के करूं, दिल कर रहा है तो भी करना ही करना है, नहीं कर रहा तो भी करना ही करना है। सो दिस इज द केस। इसमें क्या दिखा, और सिर्फ 2-3 रूब्रिक बनाए और दवाई हमें नहीं। तो हेल्पलेसनेस, ठीक है, एक अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन, गुड, वेरी गुड। और एक जो एंड जेंडर स्टेरिलिटी लिया जो फीमेल में, क्योंकि इनफर्टिलिटी का केस है तो स्टेरिलिटी रूब्रिक है हमारे पास। ठीक, ठीक है, बिल्कुल। और एक मैंने बिजनेस डाइवर्जन दिया कि उसको कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो यहाँ पे सीपिया लग रहा है मुझे। कोई और?
जी चलो मैम बिल्कुल आपने परसिक्यूटेड फीलिंग है कि करना है तो करना ही तो पड़ेगा, हाँ तो बिल्कुल फीलिंग परसिक्यूशन। नहीं, जब पेशेंट का दिल नहीं करता, उसका मन नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है, वहां पे हम रूब्रिक लेते हैं अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस। इंटेंशन नहीं है करने की, पर क्या करूं, ज्वाइंट फैमिली है, अकेले हस्बैंड हो तो बोल भी दूं कि बाहर से ले आओ। अब ज्वाइंट फैमिली है, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इतने 8-10 लोग घर में है, तो मेरा दिल नहीं करता क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा डिल्यूजन पुअर ही इज या शी इज, कि पुअर फाइनेंशियली भी कोई ज्यादा ठीक नहीं है, सेहत की तरफ से भी मैं थक जाती हूँ, हेल्पलेसनेस है, एंड ये तीसरा जो अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस, उसमें 2 मेडिसिन है हमारे पास। कौन कौन सी है? अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस, फॉस्फोरस फॉस्फोरस एंड सेपिया। सीपिया। तो दोनों में क्या फर्क है? मैम वो थोड़ा फॉस्फोरस तो बहुत पब्लिक वाला होता है, मतलब उसको तो सोशल सर्कल बहुत अच्छा लगता है, लोगों में रहना करना, तो मतलब वो एक घर हाउस होल्ड चीजों में इतना परेशान नहीं होता। सीपिया हाउस होल्ड में ज्यादा फंस जाती है। हम्म, अच्छा ये एक और ऐड हो गई अगेरिकस। मैम वैसे तो 12 मेडिसिन आ रही हैं अभी। अरे सच में? हाँ बट ओहो, काफी कुछ रेयर भी है इसमें। ओहो, पता नहीं कितनी कितनी एडिशंस होती जा रही हैं, लेकिन चलो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो सीपिया है वो पुअर है, जो फास्फोरस है वो कंटेंट है, वो हैप्पी है। ये सबसे बड़ा, वो एक कंटेंट है, काम वो भी मुश्किल से करती है लेकिन हैप्पीली करती है, सीपिया पुअर है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और जो फास्फोरस होता है वेरी अफेक्शन, वेरी माइल्ड, यील्डिंग, अफेक्शनेट, बहुत ज्यादा उसमें कम्युनिकेशन। मैं हमेशा डॉक्टर जैन शॉर्टन का थीम फास्फोरस के लिए यूज करती, मेरी दोनों बुक्स में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो फास्फोरस वाले जो होते हैं, हमने इसमें तो सीपिया दी है, वो बाद में बात करते हैं। तो जो फास्फोरस वाले पेशेंट होते हैं वो हाईली कम्युनिकेबल होते हैं, बात करनी, वो बात किए बिना तो रह ही नहीं सकते। जब भी वो कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में कोई मिल जाए, नमस्ते जी, हाँ जी, ठीक हो जी, इस तरह का। और बस में बैठा है, इधर वाले को भी पूछ लिया कहाँ जा रहे हो बेटा, किधर जाना है, अच्छा, इधर वाले को भी पूछ लिया, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन के बिना काम ही नहीं चलता। उनको वो इतने अफेक्शनेट होते हैं कि अगर कोई उनको प्यार करता है तो उनको दुगना प्यार वो वापस करते हैं। तो ये सीपिया में ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो टोटली इनडिफरेंट। उसको तो उसका हस्बैंड भी पसंद नहीं है, उसको तो उसके बच्चे भी पसंद नहीं है, मरे ही जाके दफा हो जाए। सीपिया इस तरह की होती है। और फास्फोरस जैन शॉर्टन के थीम के अकॉर्डिंगली वो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को डिफाइन करता है। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को, म्यूर को वो मदर से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्ब को वो फादर से, फॉस को वो ब्रदर्स सिस्टर्स फ्रेंड से करते हैं, और सल्फर को वो पार्टनर एंड हस्बैंड से करते हैं। तो जो फास्फोरस होता है, ये एक जो बच्चा भी होता है वो किस तरह का, उसको भी इतना कम्युनिकेशन अच्छा लगता है कि उसके घर में जब कोई आ जाए तो उसको जैसे ना चाय चढ़ जाते हैं, उनके साथ बैठ बैठ के बातें करता है। और जब घर वाले जाने लगते हैं, कोई जो गेस्ट आए हैं, फिर रोना शुरू कर देता है कि मत जाओ मत जाओ, रुक जाओ। वो फास्फोरस, ऐसा सीपिया में कुछ नहीं होता है। तो मैंने उनको सीपिया दी, जो उनका TSH 0.010 था, वो 3 महीने में
सिर्फ एक ही डोज दी थी, 3 महीने में TSH उनका 4 तक पहुंच गया। और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा करवाया एक, फिर 2.20 था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया और कुछ ही देर में उनकी प्रेगनेंसी हो गई और बेटी पैदा हुई। सो ये बहुत सुंदर केस था जिसमें सीपिया ने अंडरटेक थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस। वो मैंने मेन लेकर एंड पुअर लेकर, सिर्फ 2-3 रूब्रिक लेकर तो उनको मेडिसिन दी, जस्ट विद 1 or 2 डोजेस। अभी मैं एक बिल्कुल लेटेस्ट केस बताती, कुछ ही देर की बात है। तो एक पेशेंट का फोन आता है कि 3 सालों की शादी को बच्चा नहीं हो रहा। आजकल तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, इतने PCOD, इतने सिस्ट की प्रॉब्लम्स, ट्यूमर्स की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पीरियड्स इरेगुलर नहीं है, हॉर्मोन्स के इतने इश्यूज है। बात तो फिर वही है कि यहाँ से सब कुछ पैदा होता है। तो बात करते करते मैंने कहा जी आपके हस्बैंड का, जब भी मैं ऐसे केसेस लेती हूँ मैं हमेशा पूछती हूँ कि हस्बैंड का सेमेन टेस्ट किए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वे मैंने अपने टेस्ट पे टेस्ट करवाई जाती है, 5-5 7-7 साल दवाइयां खाई जा रही हैं, हस्बैंड का कोई सेमेन टेस्ट ही नहीं करवाया। बहुत बार हम केसेस में देखते हैं। तो इनको बहुत सारे हॉर्मोन्स के इश्यू थे, पीरियड्स भी रेगुलर ज्यादा नहीं थे, पर फिर भी एमिनोरिया नहीं था कि आते नहीं। बहुत परेशान थे कि क्या करें, बिल्कुल भी कोई ना तो घर में कोई मुझे पूछता है ना कोई प्यार करता है। तो मुझे तो इतनी, मैं तो अपने घर में इतनी लाडली थी, सब लोग इतना प्यार करते थे, यहाँ पे तो कोई पूछता ही नहीं है। मैंने कहा ससुराल में ऐसा ही होता है, लकी होते हैं वो लोग जिनको ससुराल में लोग जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको पूछते हैं, अदरवाइज कौन किसको पूछता है, कोई नहीं पूछता। तो मुझे इतना मेरा दिल करता है कि कोई प्यार करे, कोई हमदर्दी करे, कोई कंसोल करे, कोई सिंपथी दे मुझे, पर यहाँ पे कोई प्यार नहीं है। इसी बात की मुझे चिंता है। तो वो तो मेरे लिए सीधे सीधे पल्साटिला बन गई। फिर मैंने पूछा कि आपके हस्बैंड का सेमेन टेस्ट, वो कहते जी वो तो नहीं करवाया। करवाया नहीं, 3 साल से ट्राई कर रहे हो, हस्बैंड का सेमेन टेस्ट नहीं करवाया। जब सेमेन टेस्ट करवाया तो उसमें सिर्फ 10% मोटाइल स्पर्म्स थे, 80% डेड, 10% मोटाइल और सारा थोड़ा सा ऐसे। मैंने कहा प्रॉब्लम लगता नहीं है कि आप में ज्यादा है, प्रॉब्लम लगता है कि इनमें ज्यादा है। तो उनको मैंने कुछ सिम्टम वगैरह पूछे, काम क्या करते हो वगैरह वगैरह सब कुछ करके काफी लंबी चौड़ी हिस्ट्री ली। उनको मैंने नेट्राम्योर दी। तो क्योंकि केस बहुत लंबा है तो मैंने इसलिए आपको शॉर्टकट बताया कि जिसका ये था कि और जाम लगवा जाओ पाल। जिसमें ये था कि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले थे और हर काम उन्होंने टाइम पे करना, क्योंकि नेट्राम्योर में फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम होता है अलॉन्ग विद कार्सिनोसिन। ये 2 मेडिसिन है, अब तो पता नहीं कितनी और ऐड हो गई। तो मैंने उनको नेट्राम्योर दी और उनकी वाइफ को पल्साटिला दी। अगले महीने उनका फोन आता है, डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, इट वॉज सो ब्यूटिफुल कि जस्ट 1 महीने की होम्योपैथी की दवाई की कुछ डोजेज में जो 3 साल से 2.5-3 साल से वो ट्राई कर रहे थे। तो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल केस। दोनों को 1-1 डोज दी, वाइफ को पल्साटिला और हस्बैंड को नेट्राम्योर, और अगले महीने प्रेगनेंसी पॉजिटिव। एक लास्ट केस, भी टाइम भी हो रहा है तो एक लास्ट केस। ये एक फीमेल पेशेंट है, क्योंकि हमारा फीमेल्स का वो चल रहा है कि हम फीमेल्स की बातें करेंगे। तो ये एक फीमेल है 25 ईयर्स की,
इनको एलर्जिक राइनाइटिस है, अस्थमा है, पता नहीं किस किस चीज की एलर्जी है, पता नहीं कितने ज्यादा इन्होंने ट्रीटमेंट कराई, जब से छोटे से 1-1.5 साल के थे तभी से प्रॉब्लम, और कुछ साल बीच में ठीक भी रहा। और होम्योपैथी की दवाइयां तो लोग बहुत बहुत खाते हैं, तो उन्होंने बताया, हमने इपिकॉकली, सल्फर, कल्केरिया, नक्सोमिका, बेसिलिनम, पल्साटिला, सीपिया, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां, और भी 10-15 लिखी हुई है। तो मैंने कहा बच्ची क्या कर रही है? तो उन्होंने बोला कि ये इंटीरियर डेकोरेशन का इसने पिछले साल पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो अभी इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर रही है, किसी कंपनी में लगी हुई है प्राइवेट, तो वहां पे जॉब कर रही है। तो मैंने कहा आपकी ड्राइंग कैसी है? क्योंकि ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, ये तो स्केचेस मिनटों स्किंटों में बना लेती है। तो मैंने कहा और क्या करते हो? कहते मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का ये जो मास्टर्स की है, ये की मैंने इसलिए है कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। तो उनके फादर भी बोलते कि बहुत आर्टिस्टिक है डॉक्टर साहब, इतने सुंदर सुंदर डिजाइन बनाती है फ्री हैंड से। तो 2-4 चीजें और पूछी। नेचर लव, कहते मैं कुदरत को, पहाड़ों पे जाना, घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्टिस्टिक है, डिजाइनर है, और ड्राइंग बहुत अच्छी, इंटीरियर बहुत अच्छा बनाती है, फैशन डिजाइनिंग बहुत अच्छी, स्केचेस बनाती है, मेहनती बहुत है। और फादर बोलते कि जब ये छोटी थी तो हम इसको हमेशा कहते थे कि तुमने फर्स्ट आना है, तो ये हमेशा फर्स्ट आती थी। और यहां तक कि इंटीरियर डेकोरेशन में भी उसने जब पोस्ट ग्रेजुएशन की तब भी इसने टॉप किया है, मेहनती बहुत ज्यादा है। सो दिस इज द केस। क्या दिया? मुझे पता है सब लोग मेरी दवाई पर झट से पहुंच जाएंगे। कार्सिनोसिस। बिल्कुल। जो कार्सिनोसिन एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें आज से 10 साल पहले अगर हम आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड लेते थे तो सिर्फ एक ही मेडिसिन होती थी, कार्सिनोसिन। मैंने इसको पता नहीं कितने केसेस में यूज किया, पर मैं इसके साथ एक चीज और कंफर्म करती थी कि क्योंकि इसमें ये डोमिनेशन के नीचे काम करता है। कार्सिनोसिन टॉपर्स होते हैं, क्लास में फर्स्ट आते हैं, बट उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बड़ी हार्श अपब्रिंगिंग होती है, रोज पिटाई होती है इनकी, इतनी ज्यादा इनके पेरेंट्स डिमांडिंग होते हैं, फर्स्ट आना है, समझ लगी, खबरदार कोई बच्चा तुमसे आगे निकला तो, इस तरह के ये होते हैं। तो उन्होंने अपने आप ही बोल दिया कि डॉक्टर साहब फर्स्ट आती है, इसने मास्टर्स में भी टॉप किया है, क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो ये 2 चीजें जब भी कहीं आपकी कंफर्म हो जाए, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड एंड डोमिनेशन, ailments from domination, prolonged history of parental control और अदर्स, दूसरों का भी, जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स का कंट्रोल हो, दूसरों की भी डोमिनेशन प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, लंबे समय के लिए, पेरेंटल कंट्रोल, डोमिनेशन। तो कार्सिनोसिन में एक ही दवाई रह जाती है, डोमिनेशन में, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड में। अभी आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड में 11 मेडिसिन है। मुझे एक और केस याद आ रहा है, एक मेल पेशेंट थी, उनके एक्जिला में इतना बड़ा लंप था, ट्यूमर था, कि सिस्ट था, बड़े 10-15 साल से। तो केस हिस्ट्री लेते लेते मैं रेपर्टाइज करने लगी, जब तक वो मेरे साथ वैसी सिंपल बातें करते रहे। तो मुझे कहते कि डॉक्टर साहब मैं ड्राइंग बहुत अच्छी पेंटिंग बहुत अच्छी करता हूँ। जी वेरी गुड। मैं अपना इसमें रूब्रिक डाली गई, डॉक्टर साहब दिखाओ मोबाइल पे। मैंने कहा जी दिखा दो।
उन्होंने मुझे मोबाइल पे एक पेंटिंग दिखाई। हमारे यहाँ पे एक पंजाब के शोभा सिंह चित्रकार हुए हैं, वो सबसे मशहूर एंड सबसे बेस्ट जो आर्टिस्ट है उनको माना गया है। तो मुझे लगा कि ये उनकी, मैंने कहा ये आपने बनाई है? कहते हाँ, मैंने तो बहुत सारे, मैं तो छोटे होते से बनाता हूँ। तो मैंने उनकी सारी दवाई को, रेपर्टाइजेशन को कांटा मारा। मैंने कहा पहले तो इनको कार्सिनोसिन देती। कार्सिनोसिन 200 की एक डोज दी, 15 दिन की सेक्लेक। तो 15 दिन के बाद आते हैं, मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब 90% मेरी जो एक्जिला में इतना बड़ा ट्यूमर था, 90% तो गायब ही हो गया। तो कार्सिनोसिन इस तरह की होती है। जब भी इसका आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड मिलता, मैंने और कुछ नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि आर्टिस्टिक इतनी अच्छी अच्छी पेंट जब से छोटे थे तभी से करते थे। तो कार्सिनोसिन दी। वैसे भी मेरी कार्सिनोसिन बहुत ज्यादा फेवरेट मेडिसिन है। तो इनको कार्सिनोसिन 30 की एक डोज दी। नेक्स्ट मंथ इनका फोन आता है कि 70% मैं ठीक हूं, मुझे एलर्जिक राइनाइटिस नहीं हुआ, मुझे अस्थमा दोबारा से नहीं। इनको कार्सिनोसिन 200 दी गई। उसके बाद इनका फोन आता है कि मैंने तो इस बार एक बार भी इनहेलर नहीं लिया, और कितना कुछ मेरा चलता था, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन और मॉन्टेयर एलसी और पता नहीं क्या क्या। डॉक्टर साहब जब से पहली डोज ली है उसके बाद मेरी कभी भी वर्स्ट कंडीशन नहीं हुई, मुझे इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि अभी भी प्रॉब्लम है पर इतनी नहीं है। 70-80% मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। 4-6 महीने दवाई देने के बाद उन्होंने बोला कि अस्थमा तो मेरा 100% ओके हो गया, अभी इनहेलर तो बिल्कुल नहीं लेती। थोड़ी सी मुझे एक दो कभी छींकें आ जाती हैं तो वो भी बहुत कम है। तो एक दो छींकों वाली तो कोई बात ही नहीं होती। तो मुझे एक दो छींकें आती, मुझे लगता है कि मेरा तो आपने अस्थमा ठीक कर दिया। जब मैं बचपन में 1-2 साल की थी तब से मुझे ये प्रॉब्लम थी, और आज मैं 25 साल की हो गई। तो जब होम्योपैथी ठीक करती है ऑन द बेसिस ऑफ रूब्रिक्स, सिम्टम्स, जो बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन मिलती है, तो उसके ज्यादा रेपिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी पोटेंसी आप यूज कर सकते हैं, 30, 200, 1 m, 10 m तक तो मैं बहुत कम जाती हूँ। तो उससे ये केसेस इस तरह से ठीक होते हैं। किसी के मन में कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी केस से रिलेटेड? मुझे आज किसी ने पूछा कि मैडम मुझे मैंने अभी रिसेंटली वो डाला था ना डायबिटिक न्यूरोपैथी का, तो मुझे कहते जी मुझे वो प्रॉब्लम है, तो आप मुझे एक डोज से ठीक कर दोगे? मैंने कहा एक डोज में ठीक करने के लिए अकेली मेरी जो काबिलियत है वो काम नहीं आएगी, जो पेशेंट बताता है उसकी भी जरूरत होती है। और न्यूरो की प्रॉब्लम्स में जल्दी जल्दी पेशेंट को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो वो जल्दी जल्दी स्टार्ट होती हैं, उनको स्टार्ट होते होते कितने कितने साल लग जाते हैं। और एक डोज वाली बात तो ऐसे पता नहीं होता कि कौन से केस में एक डोज ने ठीक कर देना है। ऐसे कोई हम ये नहीं कहते कि बस जी एक ही डोज ले लो इसी से 100% ठीक हो जाओगे। बहुत सारे केस होते हैं, बहुत सारे केसेस में फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पेशेंट आधी बात बताता है और जब अगली बारी आती, डॉक्टर साहब ये चीजें तो मैं बताना भूल गया था। और हो सकता है कि वो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो जो कि मेडिसिन की सिलेक्शन में हेल्प कर सकती। सो अगर पेशेंट को लगता है कि एक डोज से ठीक होना है तो उसको भी अपनी सारी जो हम बातें पूछते हैं वो क्लियरली बतानी होंगी। ये भी होता है, डिपेंड करता है बीमारी कितने सालों से है। अब आप बोलो कि 25 साल, अब ये जो थर्ड केस में, लास्ट केस में 25 साल की लड़की है और उसको कब से प्रॉब्लम थी? जब वो 1-2 साल की थी।
24 साल पुरानी तो होगी, पर बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन मिल गई तो वो ठीक हो गई। अगर हम लिखेंगे कि हमने एक डोज से ठीक किया तो पेशेंट्स को लगता है कि एक ही डोज होगी। वैसे तो कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जब हमसे डिमांड करते हैं तो उनको होता है कि बस एक ही डोज से डॉक्टर साहब ठीक कर दो, बस अब ये तो कर ही दो। तो किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? मैम ये पीसीओडी वगैरह वाले केसेस को आप कौन सी पोटेंसी ज्यादा देते हो? मैं हर लेक्चर में एक बात जरूर बोलती हूँ। हमारी एक एसोसिएशन है ASRH, तो उसमें हमने बहुत साल पहले, 30 साल पहले, ये हमने एक सिस्टम बनाया था कि क्योंकि हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम कौन सी पोटेंसी दें, हर बंदा अपनी मर्जी करता था। तो हम जितने भी 40-50 लोग थे, हमने ये सोच लिया हर केस को हमने 30 पोटेंसी से स्टार्ट करना है, फिर वेट करना है 1 हफ्ते 2 हफ्ते, उसके बाद देखना है, फिर 200 दे दिया, उसके बाद फिर 2 हफ्ते वेट करके फिर 1M देनी है, उसके बाद फिर 1M रिपीट करते रहना है। लेकिन कितनी बार मैं देखती हूँ, मैं जैन शॉल्टन को बहुत पढ़ती हूँ, मैं राजन शंकरन को बहुत पढ़ती हूँ, तो जैन शॉल्टन हर केस में 1M की 1 डोज देते हैं हर महीने। तो मैं कई बार, जैसे वीट एलर्जी के मेरे केसेस होते हैं, पहले मैं 30 देती हूँ, फिर 200 देती हूँ, फिर हर महीने 1M की 1 डोज देती हूँ। तो हमने तो ये सोचना ही छोड़ दिया कि 1M दे कि 10M दे, नहीं, 30 देनी है, उसके बाद 200। हाँ, बाई चांस आपके पास 30 नहीं है तो आप 200 दे सकते हैं। सो हर केस, चाहे पीसीओडी का देखो, ये कभी नहीं सोचना कि उसको तो कैंसर हो गया, उसके तो हिप की प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, उसको तो किडनी डिजीज है, उसको लिवर सिरोसिस हो गई, ये मैं कैसे ठीक करूंगी? नो, आपने कुछ नहीं करना, सब कुछ दवाई करेगी। बहुत सीरियस केसेस ऑफ लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, वो होम्योपैथी से ठीक होते हैं। एलोपैथी से वो दब सकते हैं, वो सुप्रेस हो सकते हैं, वो कंट्रोल में रह सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी उसको क्योर करती है। बहुत सारे केसेस, मेरी 100 days 100 केसेस वाली सीरीज थी, उसमें मैंने कितने केसेस डाले विद रिपोर्ट्स, पैथोलॉजिकल केसेस। आज सुबह भी मैंने जो डिफरेंट ग्रुप्स पे मैं रूब्रिक डालती हूँ जो 8 बजे, तो आज मैंने 10 मिनट्स 10 केसेस वाला डाला, जिसमें सारे सर्जिकल केसेस थे, एक दो कुछ एक को छोड़ के, और सारे होम्योपैथी से ठीक हुए। ऐसे ये नहीं सोचना कि ये बहुत बड़ी बीमारी है यार, ये तो किसी और को रेफर कर दूं, मैं तो नहीं कर सकती। नो, कोई भी बीमारी होगा, बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन निकलती है, हमारे पास अप्रोप्रिएट रूब्रिक हमसे लगते हैं, तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि वो ठीक ना। अगर नहीं लगते रूब्रिक, उसमें अकेले आपकी गलती नहीं है, उसमें पेशेंट की भी गलती है, उसने ढंग से बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया, वहां पर उसकी भी गलती है। कई बार डॉक्टर्स देखते हैं कि पहली दवाई ने असर नहीं किया, वो झट से दवाई बदल देती है। नो, दवाई बदलने के लिए पहले 30 पोटेंसी दीजिए, चाहे अगले हफ्ते 200 दे दो, चाहे अगले हफ्ते 1M दे दो, लेकिन 2-3 पोटेंसीज दो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट की वाइटैलिटी इतनी लो हो जाती है कि उसके ऊपर कोई 30 पोटेंसी असर नहीं करती, 200 असर नहीं करती, 1M असर करेगी। और जब तीनों पोटेंसीज कर लो, एग्जॉस्ट हो जाए, फिर दोबारा से केस लो, दोबारा से नया सेट ऑफ रूब्रिक लेके फिर पेशेंट को हमने दवाई दी। ये हैनीमैन ने ऑर्गेनॉन में लिखा है। और जल्दी ही मैं ऑर्गेनॉन की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने तो 45 साल पहले होम्योपैथी में एडमिशन लिया था 80 में, तो तब की पढ़ी हुई है, और जब मैं आज पढ़ रही हूँ उसको तो मुझे इतना मजा आ रहा है ऑर्गेनॉन पढ़ के, कि पहले तो हम बड़ा बोर होते थे उससे, लेकिन अब इसमें पता चल रहा है कि एग्जैक्टली कैसे हैनीमैन ने ये सब कुछ किया। तो एक बार फिर से पूछती हूँ, किसी के मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन,
कोई क्वेरी किसी भी चीज के साथ रिलेटेड? मैम चैट में किसी ने लिखा है ट्यूमर एक्टिव होता है तो कार्सिनोसिन दे सकते हैं क्या? मैं तो कभी नहीं देती। मैं तो अगर सिम्टम्स मैच करेंगे तब मैं दूंगी, अगर सिम्टम्स मैच नहीं करेंगे मैं बिल्कुल भी कार्सिनोसिन नहीं दूंगी। नो, ना हम कोई इंटरकरेंट दवाइयां देते हैं, ना हम कोई मियास्मेटिक कंसिडरेशन देखते हैं। हम तो देखते हैं कि पेशेंट आया, उसने 4 बातें बोली, वो 4 बातें हमने अपनी दवाई के साथ मैच की और पेशेंट को दवाई दे दी। हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। तो कोई भी ऐसे नहीं है कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है तो उसको ट्यूबरकुलाइनम दे दें, तो ऐसे नहीं। अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तभी देंगे, अदरवाइज। मैम पल्सिटिला का डिसीटफुल नेचर थोड़ा सा इलाबोरेट कर दीजिए। जैसे मैनिपुलेटिव है, मैंने बोला ना पहले कि वो क्यों इतना माइल्ड एंड यील्डिंग, वो क्यों ऐसा होता है, वो क्यों रोता है बार बार? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे तो ये लोग पूछते ही नहीं है, ये लोग बिल्कुल ही नहीं पूछते। अगर मैं इनके लिए अच्छी ना बनी तो फिर तो ये मुझे बिल्कुल नहीं पूछेंगे। लेकिन उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ग्रीड है। तो ग्रीड के साथ ही उसका मैनिपुलेशन, उसका डिसीटफुल कैरेक्टर, ये सब उसी के साथ ही जुड़ा है। तो इस जी तरह मैम, से गॉट इट। हाँ, जैसे वो ग्रीड वाला है ना, एवराइस है, वांट्स ऑल फॉर हिमसेल्फ। ये बड़ों में भी होता है, जैसे घरों में डिवीजन होती है। तो हमने बहुत लोगों के घरों में लड़ाइयां देखी हैं। जब बीमार होके पेशेंट्स आते हैं तो बहुत सारे लोगों के घरों में लड़ाइयां कि मुझे तो मेरी माँ ने ये नहीं दिया, मेरे फादर ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे बड़े भाई को ही दे दिया। वो ही इतना ग्रीडी था कि वो सारा कुछ हड़प के ले गया। ऐसे बहुत सारे। तो वहां पर भी चाहे माइल्ड शो कर रहा है पर है तो वो ग्रीडी, डिसीटफुल, धोखेबाज, मैनिपुलेटिव, इस तरह का पल्सटिला होता है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे हमें तो बड़ा अच्छी सी लगती थी पल्सटिला, बेचारी नरम से सब भाव वाली, जल्दी रो पड़ना, जल्दी बेचारी का आंसू निकल आते हैं, कॉन्सोलेशन अच्छी लगती है। लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ छुपा, सेल्फिश है, डिसीटफुल है। अगर हम नेगेटिव रूब्रिक्स की बात करते हैं, बहुत नेगेटिव रूब्रिक्स है, क्योंकि ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। इनमें पॉजिटिव भी बहुत होते हैं रूब्रिक्स, नेगेटिव। जी जी मैम, थैंक यू। या जी डॉक्टर मानसी, जी मैम, बहुत अच्छा, वो बहुत बढ़िया। कहाँ गए डॉक्टर निमोले? वो पेशेंट देखने के लिए गए थे हॉस्पिटल में। अच्छा, अभी तक उधर ही है? हाँ, वो शायद ट्रैफिक में अटक गए। हाँ, उनको बोल देना कि हमने उनकी एब्सेंट मार्क कर दिया आज। जी जी या जी हाँ, जी। या Thank you चलो, so much, ma'am, या for such a wonderful and lively session. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। हेलो जी, हेलो थैंक यू जी। हेलो हाँ जी, हाँ हाँ, जी। काय मैडम? Madam, Dr. Neelam was telling that she was doing lot of pathological cases, complicated cases. Can we have that also on the session? In the sessions, can we have? नहीं, मैं तो अपने केसेस डालती रहती हूँ, मेरे तो यूट्यूब चैनल पे इतने केसेस पड़े हैं, मैं तो डालती रहती हूँ सारे केसेस। 100 डेज अच्छा 100 केसेस की मेरी सीरीज थी, अभी सेकंड चल रही है। तो उसमें भी ये बीच में इतने पैथोलॉजिकल केसेस सब चलते रहते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, डॉक्टर नीलम अवतार सिंह लिखिए, उसमें 800 के आसपास वीडियोस हैं, okay जो then सब okay. रूब्रिक से भरी हुई हैं, जो सब केसेस से भरी हुई हैं, बीमारियों से भरी हुई हैं। इस तरह से आप वहां से देखिए। Okay, doctor, thank you very much for या giving me. जी Thank you. मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू माय टीम PHF। Yeah, thank you, ma'am. Ma'am, this will come on the YouTube, या, na, यस in यस Night of यस Mind. यस। Thank you, ma'am. या, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। Thank you, Mansi ma'am.